کہ ہمارے صدر بزم محترم المقام پیر سید عقیل شاہ صاحب نور اللہ وجہہ وزید مجدہ آپ کے زیر سایہ اپنی مخصوص وقت میں حاضری اپنے ہی ایک کلام کے ساتھ کرتا ہوں کہ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مصروفیت میں ہے قبلہ شاہ جی، مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے۔ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے، اور پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، کشکول میں جو آپ کے در کی خیرات ہے، پوری کروں گا حاجتیں شاہان وقت کی، کشکول میں جو آپ کے در کی خیرات ہے۔ اور قبلہ تفسیر لفظ مجمع بحرین، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی۔ مجمع بحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ تفسیر لفظ مجمع، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، تفسیر لفظ مجمع بحرین ہو گئی، مولا علی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ اور شعر سنیے گا، دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، آزاد بھائی توجہ چاہوں گا، دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، اس مصرے کی تشریح نہیں کروں گا، گزر جاؤں گا۔ دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، زہرا کا احترام ہی وجہ نجات ہے۔ دے دو محققیت دوراں کو یہ خبر، زہرا کا احترام ہی وجہ نجات ہے۔ اور تقابل دیکھیے گا، اور یہ اتفاق بھی دیکھیے گا، اور انداز دیکھیے گا کہ صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، صدقہ دیا ہے آپ کا قبلہ شاہ جی، صدقہ دیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ، صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، اور آپ کے حضور میرے لب پہ نعت ہے۔ صدقہ دیا ہے آپ کا سرکار کے حضور، اور آپ کے حضور میرے لب پہ نعت ہے۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، کیا یہ مسجدیں بطول کے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، مجھ کو تبسم اہل ادب کا یہ درس ہے، یہ مسجدیں بطول کے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مصروفیت میں ہے بھلے دن ہے یا رات ہے، مشغول ورد سیدہ کائنات ہے۔ میرے پاس وقت مختصر ہے، لیکن اپنی حاضری میں نے آپ کی بارگاہ میں قصیدے سے لگوائی۔ جو آیت مبارکہ قبلہ میں نے پڑھی، اس کے حوالے سے ایک دو گزارشات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ وہی اتنا لطیف ہے کہ اس کی گہرائیوں کے اندر نہ بھی بندہ جائے، اس کا سادہ ترجمہ بھی پڑھے تو بندہ اوج ثریا پہ پہنچ جاتا ہے۔
सादा सा तर्जुमा इन्नमा कलमा हसर है। अब ये खालिस ग्रामर की ज़ुबान है, मैं ग्रामर की इस्तिलाह आपको नहीं समझाऊंगा, तर्जुमे के अंदर समझा दूंगा। इसका माना ये है कि सिवाय इसके अल्लाह का इरादा और कुछ नहीं कि अल्लाह ताला अहले बैत से हर किस्म की निजासत, हर किस्म के रिज्स, हर किस्म के नक्स, हर किस्म की कमी, हर किस्म की कजी को दूर कर दे और उन्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। सादा जुबान में अगर आपने युतहिरुकुम ततहीरा को समझना है ना, तो आयत दुरूद को समझ लें। युतहिरुकुम ततहीरा वही माना रखता है जो युसल्लिमु तस्लीमा रखता है। युतहिरुकुम ततहीरा वही माना रखता है जो युसल्लिमु तस्लीमा रखता है। वो भी मफूल मुतलक है, ये भी मफूल मुतलक है, इस तरफ नहीं जाता मैं। हाज़रीन गिरामी कदर, एक वाक़या अहादीस की कुतुब में मनकूल है। वो वाक़या यूं है कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में चादर मुबारक ओढ़े हुए हैं। इतने में कुछ देर गुजरी कि मौला कायनात शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम तशरीफ़ लाए। हुजूर ने चादर के अंदर अपने पहलू में ले लिया। थोड़ी देर गुजरी, सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ़ लाई, आपने उन्हें भी चादर के पहलू में ले लिया। कुछ देर बाद इमाम हसन आए, कुछ देर बाद इमाम हुसैन आए, तो ये 5 तन बन गए। ये 5 तन बन गए। जब ये 5 तन चादर में पूरे हुए तो हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इससे हर किस्म की निजासत को दूर कर दे। जब ये वाक़या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत बनाकर ये कानून उतार दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। इसमें बड़ी लतीफ़ बात यह है, बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको इस तरह नकल किया है कि ये वाक़या पहले हुआ और आयत बाद में उतरी। ये बड़ी बारीक बात है कि वाक़या पहले हुआ और आयत बाद में उतरी। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं, आयत पहले उतरी, ये वाक़या बाद में हुआ है। हालांकि इसमें इख्तलाफ है सिर्फ इसके नुज़ूल में कि वाक़या पहले हुआ, आयत बाद में उतरी, या आयत पहले नाज़िल हुई, वाक़या बाद में हुआ। हमें दोनों से ही इख्तलाफ नहीं, हमें दोनों से ही इख्तलाफ नहीं, हम दोनों ले लेते हैं। अगर वाक़या पहले हो, किबला वाक़या पहले हो और आयत बाद में उतरे ना, तो इसे शान नुज़ूल कहते हैं, शान नुज़ूल कहते हैं। और शान नुज़ूल का उसूल ये है कि उसूल तफसीर की कोई किताब आसान से आसान उठा लें, मुश्किल से मुश्किल उठा लें। बड़ी आपके ज़ौक़ की बात है आज़ाद भाई, बड़े ज़ौक़ की बात। ये शाह जी के घुटनों पे हाथ रखते हुए मैं जुमला दे रहा हूँ कि उसूल तफसीर में ये उसूल लिखा हुआ है शान नुज़ूल का, कि किसी दौर के हजार हा उलमा भी उस शान नुज़ूल के खिलाफ इजमा भी कर लेना, तो इजमा खता पर होगा, शान नुज़ूल खता पर नहीं होगा। वो इजमा खता पर होगा, शान नुज़ूल खता पर नहीं होगा। और शान नुज़ूल का लुत्फ ये है कि शान नुज़ूल होता है कि वाक़या पहले हुआ, उसकी ताईद में अल्लाह कुरान उतारता है। बड़ी बारीक बात है। शान वाक़या पहले होता है, उसकी ताईद में अल्लाह कुरान उतारता है। हम उन मुहद्दिसीन की बात ले लेते हैं जो कहते हैं कि वाक़या पहले हुआ और आयत बाद में उतरी है, तो हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं। जब ये वाक़या हुआ, उसकी ताईद में अल्लाह ने कुरान उतार के बता दिया कि महबूब जो वाक़या है ये बिल्कुल ठीक वाक़या है, ये जो वाक़या है ये बिल्कुल ठीक वाक़या है। अब दूसरा पहलू ले लें, वो क्या है कि आयत पहले उतरी, वाक़या बाद में हुआ, ये चादर वाला। तो जब भी कोई आयत उतरती है उसके बाद कोई वाक़या हो, उसे तफसीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तफसीर कहते हैं।
یہ جو آپ آج کل اردو کی تفسیریں پڑھتے ہیں نا، کوئی مفسر ایسا ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے 1500 سال بعد پیدا ہوا، آج کے مفسر کوئی ایسے ہوں گے جو 1300 سال بعد آئے، کوئی جو یہ زمانہ حضور کے قریب جاتا جائے گا تو مفسر کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی، جو دور ہوتا جائے گا تو اس کی کریڈیبلٹی کم ہوتی جائے گی۔ اب اس کو دیکھیں، بعض مفسر ہیں وہ 1300 سال بعد کے ہیں، بعض مفسرین ہیں وہ 1000 سال بعد کے ہیں، اس سے اوپر چلتے جائیں، بعض مفسر ہیں جو 300 سال بعد کے ہیں، بعض مفسر ہیں جو 100 سال بعد کے ہیں، اور اس سے بڑے جو سب سے اعلیٰ مفسر ہیں، مفسرین کی جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جنہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ آیت پہلے اتری اور واقعہ بعد میں ہوا تو اس آیت کی تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی، صاحب قرآن نے کر کے بتائی، صاحب قرآن نے کر کے بتائی۔ یار اگر یہ شان نزول ہو تو پھر اللہ کی تائید اترتی ہے، اگر یہ آیت پہلے ہو واقعہ بعد میں ہو تو پھر رسول اللہ کی تائید آ جاتی ہے۔ بات یہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ذوق کی بات چل رہی ہے، حضور صحابہ کرام کی جماعت میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو فضیلت کسی عمل کی وجہ سے ملی ہے، جن کو فضیلت کسی اسی آیت کا جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو دیکھیں، جو ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، وہ کیا ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ وہ یہ ہے کہ بھائی تم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول کی خواتین، اے نبی کی عورتوں، کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں، اس لیے کہ تمہاری نسبت بڑی تگڑی ہے، لیکن یاد رکھنا اس نسبت کا پاس رکھنا، اگر نسبت کا پاس رکھو گی تو میں ایک عمل کا اجر دوہرا کر کے دوں گا، لیکن اگر اس کا پاس نہ رکھا تو چونکہ عمل اور نسبت ختم ہو گئی لہذا میں وہ جزا وہ فضل تم سے لے لوں گا، اس کا گناہ بھی دگنا ہوگا، حالانکہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی روایت بھی اس طرح کی نہیں ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ لیکن وہ فضیلت جو کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے نا، قبلہ اسے کہتے ہیں فضل جزائی، فضل جزائی، لیکن جو کسی عمل کی وجہ سے نہ ہو، محض اللہ کے ارادے سے ہو، اسے فضل اختصاصی کہتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس مقام کے لیے، جتنے مقام کے لیے چاہتا ہے چن لیتا ہے، تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضور اس کے آگے دیکھیں، عمل کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک اس کا اختتام ہوتا ہے، عمل محدود تو جزا بھی محدود۔ جب کسی جزا کو عمل سے جوڑا جائے نا تو جہاں تک عمل رہے گا وہاں تک اس کی جزا ہوگی، جہاں سے عمل شروع ہوگا وہاں سے جزا شروع ہوگی، جہاں پہ عمل ختم ہو جائے گا وہاں پہ جزا ختم ہو جائے گی۔ اہل بیت کی اس فضیلت کو کسی عمل کے ساتھ تو اللہ نے جوڑا ہی نہیں ہے، کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنے ارادے کے ساتھ جوڑا ہے۔ انما یرید اللہ، اب اللہ کے ارادے کا آغاز تم بتا دو، اہل بیت کی فضیلت کا آغاز میں بتا دیتا۔ اب اس پیمانے میں نہ پڑھو کہ یہ کب سے فضیلت ملی، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں چوکری پریت لگائی ہوں، کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ نہ اللہ کے ارادے کا کوئی آغاز ہے، نہ اہل بیت کی فضیلت کا کوئی آغاز ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کی صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں اصول عقیدہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کی صفات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئی۔ اللہ کی صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئی، جب سے اللہ ہے تب سے اس کی صفات ہیں، تب سے اس کا ارادہ ہے، جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے اہل بیت سب سے افضل ہوگی۔ ان اہل بیت میں سے ایک ہستی جو چادر میں تھی، ان اہل بیت میں سے ایک ہستی
सैयदा तय्यबा ताहिरा सलाम अल्लाह अलैहा है। हाज़रीन गिरामी कदर, मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और यहाँ मौजूद तमाम अहबाब, उनकी तवज्जो एक बात की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ वो ये कि सहाबाए किराम में सहाबी होने के एतबार से सब बराबर हैं कि सहाबी हैं। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की नज़रों से हुजूर के रुख अनवर का दीदार किया हो और ईमान की हालत में ही इस दुनिया से गया हो। सहाबी होने के एतबार से सब बराबर हैं, लेकिन ये हुजूर का फजल है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ ऐसी खुसूसियतें देते हैं जो किसी और को नहीं है। हज़रत उमर फारूक को कुछ ऐसी खुसूसियात अता की जो किसी दूसरे को नहीं दी। हज़रत उस्मान गनी को कुछ ऐसी खुसूसियात अता की जो किसी दूसरे को नहीं दी। इसी तरह मौला कायनात को कुछ ऐसी खुसूसियात अता की जो किसी दूसरे को नहीं दी। जो ख़ास खुसूसियात सैयदा कायनात को हासिल है ना, वो सहाबा किराम में भी किसी को हासिल नहीं। वो उनमें से एक खुसूसियत कौन सी है? एक खुसूसियत वो है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने आला मकाम के हैं, खुलफाए राशिदीन तमाम कितने आला मकाम के हैं। एक रिवायत भी कोई नहीं दिखा सकता कि कोई बड़े से बड़ा सहाबी आया हो तो हुजूर उसके लिए खड़े हो जाएं। है ही नहीं, कोई रिवायत ऐसी नहीं है। लेकिन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, इमाम अबू दाऊद नकल करते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका भी इस हदीस की रावियां हैं, हज़रत अबू हुरैरा भी इस हदीस के रावी हैं। अब दोनों हजरात फरमाते हैं कि अगर हुजूर 10 मरतबा सैयदा कायनात से मिलने गए तो सैयदा कायनात अपने बाबा जान के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी और आपके हाथ को बोसा देती थी। इसके बदले में अगर सैयदा कायनात 20 मरतबा हुजूर से मिलने आए तो हुजूर 20वें मरतबा अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते और खड़े होकर उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं। फिर कमाल की बात यह है, जब भी सहाबाए किराम हुजूर से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं क्या? कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, वाहिद कायनात में सैयदा की जात है जिनको हुजूर कहते हैं फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हाज़रीन गिरामी कदर, ये खास खुसूसियतें ऐसी हैं जो दुनिया की सब इंसानों से, दुनिया की सब खवातीन से सैयदा को जुदा कर देती हैं। उनमें से एक कुरान मजीद की आयत ही ले लें। हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, उनके बारे में 3 पारे में कुरान मजीद एक आयत पूरे रुकू नकल करता है। उसमें लिखता है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहारकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है, व तहहारकी, और तुझे पाक कर दिया है, तुझे पाक कर दिया है। इस पाकीज़गी के अंदर इतने राज हैं, इतने राज हैं, इतने राज हैं, अगर समझना चाहो ना तो दुनिया की मेडिकल साइंस सर फोड़ कर मर जाए लेकिन आपकी पाकीज़गी के मकाम को नहीं समझ सकती। इसके अंदर अगर आप तय में चले जाएं कि इस तत्हीर का माना क्या है, इस तत्हीर का माना क्या है, मकाम इतना बड़ा है कि सोशल मीडिया है, मैं उस तरफ नहीं जाता, बात आगे करता हूं। ईसा की मां हजरत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा को सिर्फ तहिर किया है। हुजूर ईसा की मां मरियम को सिर्फ तहिर किया है। ये हस्ती ऐसी है जिसको तहिर भी किया है, ततहीर भी किया है। युतहिरुकुम ततहीरा किया है। हाज़रीन गिरामी कदर, अल्लामा इकबाल के अशार अर्ज करता हूं, उन्होंने क्या इस आयत से क्या समझा है, वो अशार नकल करके तो हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। फरमाते हैं रमूज़े बेखुदी के अंदर आपका ये कलाम मौजूद है। कहते हैं मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़, जो मरियम है ना उसको एक निस्बत है और वो बड़ी बुलंदी पे है, मरियम बहुत बुलंदी पे है। अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज़, 3 निस्बतों की वजह से हजरत ज़हरा का मकाम मरियम से कहीं 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 बुलंद हो जाता है। पहली, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर बन के आई है। इमाम अव्वलीन व आखिरीन, वो रहमतुल लिल आलमीन जो अगलों पिछलों का इमाम है, वो मुस्तफ़ा जो अपने से पहलों का भी इमाम है, वो मुस्तफ़ा जो अपने बाद वालों का भी इमाम है,
उस मुस्तफ़ा की आंखों का जो नूर है उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। दूसरी निस्बत बानुए आ ताजदारे हल अता, ताजदारे हल अता मौला अली की शान में मुफस्सिरीन कराम ने बात की है कि सिर्फ मुवाफ़क़ात उम्र को निकाल के, मुवाफ़क़ात उम्र की तादाद तकरीबन 20 है जो हज़रत फ़ारूक आज़म की शान में उतरी। किसी सहाबी की शान में इतनी आयात नहीं उतरी जितनी मौला अली की शान में उतरी, बल्कि मुफस्सिरीन ने इसकी तादाद भी लिखी है। बाज़ ने कहा है तकरीबन 300 आयात सिर्फ मौला कायनात की शान में उतरी हैं अल्लाह के कुरान की। फरमाया बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। मुश्किल कुशा से अल्लामा इकबाल का कीदा भी समझ आता है। मुश्किल ये अल्लामा इकबाल तो सारे पढ़ते हैं ना जी, वो एक लफ्ज में सब कुछ बता गए। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, आगे तो कलम ही तोड़ दिया। फरमाया मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, जो इश्क की पुरकार है ना, जो इश्क अपने गिर्द दायरा खींचता है जिसमें सारे आशिक आ जाते हैं, उसका मरकज इमाम हुसैन की जात है। उसकी माँ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। और आगे देखिए अल्लामा इकबाल जितना बड़ा सूफी है ना उतना बड़ा मौलवी भी है। अब ये अगले शार बताते हैं, कहते हैं रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास्त। ये जो आईन मुस्तफ़ा है ना, ये जंजीर बनकर मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ात, मुझे हुजूर के फरमान का पास है। कौन सा फरमान? हुजूर ने फरमाया था कब्रों को सजदा गाह ना बनाना। हुजूर ने फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी को सजदा न करना। रिश्ताए आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ात, वरना गिरदे तुर्ब तशगर्दीद मी, वरना गिरदे तुर्ब तशगर्दीद मी। इकबाल जैसा फलसफी ए ज़हरा तेरी कब्र का तवाफ भी करता, तेरी कब्र की खाक पर सजदे भी करता। मुझे सिर्फ रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ात, वरना गिरदे तुर्ब तशगर्दीद मी, सजदा हाय खाके ऊ पाशीद मी। अल्लामा इकबाल की कब्र पर भी अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जो अहले बैत का आशिक हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है, जो उनका हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है। हाज़िन गिरामी कदर, वक्त मैं ज़्यादा ले चुका हूँ, इस पर मैं माज़रत भी चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।